Good morning, students. Today we are going to start the lesson, the open window. Okay, this lesson is in your supplementary book, chapter 7. So let us start. The open window. From Nuttall, Frampton Nuttall had bad nerves. Bad nerves. These are the main points. Please take note. He had bad nerves. He retires to the country for cure. Okay, means फ्रेम्पटन नटल चिंताओं से ग्रस्त था. बैड नर्व्स मतलब ही हैड प्रॉब्लम्स. एंड फॉर ट्रीटमेंट अपने इलाज के लिए, क्योर मीन्स इलाज. ही रिटायर्स टू द कंट्री. रिटायर्स मीन्स ही गोज टू द कंट्री. ओके, सो ही गोज टू द कंट्री फॉर क्योर. कंट्री मतलब विलेज. ही गोज टू द विलेज फॉर हिज क्योर. ओके, and calls on a family friend. Calls on a family friend means वहाँ अपने एक फैमिली फ्रेंड के यहाँ पे कॉल करता है रुकने के लिए. The lady being busy upstairs, her young niece refers to a family mishap which focus on the open window. उसकी बहन है जो फैमिली मतलब रिलेटिव है, फैमिली फ्रेंड है. उसकी बहन उसके लिए चिंतित थी और सोचती थी कि वह वहाँ अकेला हो जाएगा, इसलिए फैमिली फ्रेंड के बारे में बताया. उसने उसे उन लोगों के परिचय पत्र भी दिए क्योंकि वो जानती थी गांव में. एंड वो लेडी जो थी, दैट लेडी वाज मिसेस सैपल्टन. ओके, हर नीस रेफर्स टू अ फैमिली. तो एक फैमिली के बारे में रेफर करती है और उस फैमिली में एक ओपन विंडो है जिसके बारे में लेसन है, द ओपन विंडो. उसको फोकस करती है कि what is this open window about. Okay, so let us read without much ado. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. So Frampton Nuttall was suffering from anxiety. Anxiety मतलब घबराहट, nerves. First line में हमने देखा. So he was suffering from anxiety. And to cure himself, he had decided to move to a calm place. गाँव में शांति मिलेगी. Calm, C-A-L-M, calm. Calm की spelling है C-A-L-M, calm. Okay? Calm जगह पे जाने की वो ठानता है. And that calmness will be available in countryside. Countryside means village. Country का मतलब होता है village. Okay? So what is the meaning of country? कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज. ऑल राइट चिल्ड्रन, सो ही डिसाइडेड टू गो टू द कंट्री साइड एंड एज इट वुड सूद हिज नर्व. सूद मतलब क्योंकि उसे वहां जाके आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा. सूद स्पेलिंग इज S इट वुड सूद हिज नर्व. सूद मतलब आराम दिलाना. ठीक है, ऑल राइट. सूद का मतलब है आराम. ओके, उसे आराम मिलेगा, शांति मिलेगी, शांति. ओके, सो he decides to go to the countryside. Now his sister was concerned about him. उसकी बहन को चिंता थी कि वो कैसे रहेगा. And felt that he would be lonely there as he would not have anyone. तो मिस्टर नटल, फ्रैम्पटन नटल की जो सिस्टर होती है, she is very much concerned, चिंतित है. तो वो क्या करती है कि she gave him letters
ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द पीपल शी न्यू देयर, न्यू मतलब जिनको पहचानती थी, उनके लेटर्स अपने भाई को दे देती है कि उनके पास आप जाके रहो ताकि आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा. सो ही वेंट टू विजिट मिसेस सैपल्टन विथ वन सच लेटर. सो ये जो मिसेस सैपल्टन है, मिसेस सैपल्टन ये वही लेडी है जिसका पता बहन ने भाई को बताया था. ठीक है, ओके. So, let us read. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with me. Meantime में आपको मेरे साथ रहने की आदत डालनी पड़ेगी. Okay? Now, Frampton Nuttall endeavoured to say something which should duly flatter the niece of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. So, self-possessed किसको कहते हैं? Confident. Self-possessed means confident. Self-possessed means confident. So, this child is confident, this girl. She was of around 15 years of age. In the meantime, you must try and put up with me. Put up with me means tolerate me. Put up करना मतलब tolerate करना. तो इस बीच में आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा जब तक आंट नहीं आ जाती. ऐसा कौन कहता है? दिस 15-year-old confident girl. Frampton Nuttall, the full name of Mr. Frampton is Frampton Nuttall. Frampton Nuttall endeavoured means tried. He tried to say something which should duly flatter the niece. कुछ ऐसा बोलने की उन्होंने कोशिश की, tried to say something which would duly flatter the knees. Flatter करना मतलब किसी की प्रशंसा करना. Flatter means to praise someone, to praise or to compliment. Okay? तो उसको compliment करने की कोशिश करते हैं वो. All right? Okay. So, ताकि वो बच्ची भी comfortable feel करे, without unduly discounting the aunt that was to come. Unduly discounting मतलब aunt को excessively अनदेखा कर रहे हैं वो. Excessively मतलब unduly का मतलब होता है excess. Excessively वो aunt को overlook करते हैं. Overlook करना यहाँ पे मतलब अनदेखा करना. Okay. Privately he doubted more than ever whether these formal visits of a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. ठीक है, तो वहाँ पे जो लेडी उसको ग्रीट करती है उसका नाम क्या है? ये बच्ची का नाम वेरा होता है, वेरा. ओके, सो ये वेरा जो होती है वो उसको ग्रीट करती है. वेरा आस्क्स नटल दैट बी कंफर्टेबल, बेयर विथ मी, जब तक मेरी आंट आ नहीं जाती आप मेरे साथ समय बिताइए. पर इनको मन में डाउट था. किसको? फ्रैम्पटन नटल को मन में बहुत डाउट था कि क्या ये फॉर्मल विजिट्स ऑफ सक्सेशन, सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, रिपीटेड विजिट्स, क्या इन रिपीटेड विजिट्स से कोई फ़ायदा होगा? जो बीमारी है उनको, उस बीमारी में ये बार बार आने जाने से कोई फ़ायदा है या नहीं, इस बात में वो थोड़े डाउटफुल थे. ओके, फाइन. देन फाइन. नाउ I know how it will be, his sister had said when he was preparing to migrate to this rural retreat. उनकी बहन, किसकी बहन? I know how it will be. His sister said. His means Frampton Nuttall's sister. Frampton Nuttall की sister ने बोला था कि मुझे पता है वहाँ पे कैसा होगा, अकेले कैसा समय बीतेगा. When he was preparing to migrate. Migrate means, migrate करने का मतलब है to move to another place.
temporarily. Temporarily. I know this is the place is too clumsy, but I hope you understand. So temporarily कहीं रहने के लिए जाना, इसको माइग्रेट कहते हैं. तो किसी एक नई जगह पे माइग्रेट होना अकेले कैसा होगा? एक रूरल एरिया में, रूरल मीन्स इट इज़ विलेज, विलेज मतलब गांव की जैसी एरिया में अकेला रहना कैसा होगा? ये मुझे बहुत अच्छे से पता है. कौन कहता है? मिस्टर फ्रैम्पटन नटल की सिस्टर. यू विल बेरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल. वहाँ पे तुम अपने आप को बेरी कर लोगे. बेरी मीन्स टू कवर, अपने आप को ढक लोगे. कैसे? अपने आप अपनी दुनिया में ही तुम डूब जाओगे, क्योंकि वहाँ पे तुमको कोई भी बातचीत करने के लिए मिलेगा नहीं. नॉट अ लिविंग सोल. नॉट अ लिविंग सोल का मतलब होता है नोबडी. ठीक है, कोई नहीं मिलेगा तुमको बात करने के लिए, तो तुम अपने आप में ही अपने अकेलेपन में खो जाओगे. तो इसीलिए शी सेज दैट आई नो हाउ इट इज गोइंग टू बी एंड योर नर्व्स विल बी वर्स देन एवर फ्रॉम मोपिंग. मोपिंग मतलब, मोपिंग का अर्थ है ग्लूमी, मिजरेबल, दुखी हो अकेले तुम दुखी हो जाओगे. और जो तुम्हारी बीमारी है नर्व्स, एंग्जाइटी की जो बीमारी है, घबराहट जो तुम्हें होती है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए तुम जा रहे हो, वो अकेले रह के दुखी होके और ज़्यादा बढ़ जाएगी. तुम्हारा पर्पस क्या है? इस बीमारी को ख़त्म करने तुम जा रहे हो, लेकिन बिकॉज यू विल नॉट हैव एनीबडी, तो तुम्हारी बीमारी ये और बढ़ जाएगी. आई शेल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर. वहाँ मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनके लेटर्स मैं तुम्हें दे देती हूँ इंट्रोडक्शन के लिए, सो दैट यू कैन गो एंड कैच अप विद देम. उनसे मिल सकते हो आप जा करके. सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वे क्वाइट नाइस. एज फार एज आई कैन रिमेंबर, जहाँ तक मुझे याद है उनमें से कुछ लोग तो बहुत अच्छे हुआ करते थे. वेर क्वाइट नाइस. क्वाइट मीन्स, क्वाइट का मतलब यहाँ पे है काफ़ी. कुछ लोग तो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर. चलो, देन Frampton wondered whether Mrs. Sappleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. तो अच्छे लोगों की कैटेगरी में ये मिसेस सैपल्टन भी आती थी. कुछ लोग वहाँ काफ़ी अच्छे थे, ऐसा कहा था ना उनकी बहन ने कि मेरे ख्याल से कुछ लोग जो थे वो बहुत अच्छे थे. उसी की कैटेगरी में, अच्छे लोगों की कैटेगरी में, नाइस डिवीजन की कैटेगरी में मिसेस सैपल्टन का भी नाम था. जिससे द लेडी टू हुम ही वॉज प्रेजेंटिंग वन ऑफ द लेटर्स, एक लेडी जिसके पास जाके वो लेटर दिखाते हैं इंट्रोडक्शन का, वो लेडी मिसेस सैपल्टन होती है, जिसको अच्छी कैटेगरी में रखा गया था. किसके द्वारा? मिस्टर फ्रैम्पटन की बहन के द्वारा. उसकी बहन ने बताया था, फ्रैम्पटन की बहन ने, कि कुछ लोग वहाँ बहुत अच्छे थे. उन कुछ लोगों में से मिसेस सैपल्टन का भी नाम दिया था उन्होंने. Do you know many of the people round here? asked the niece when she judged that they had had sufficient silent communion. Communion का मतलब होता है sharing thoughts. Communion means sharing thoughts. जब बहुत देर तक वो silently बैठे रहे, तो उसने फाइनली उस जो नीस है मिसेस सैपल्टन की, जो उस समय घर पे होती है, जब फ्रैम्पटन उनके घर गए हैं विजिट करने, तो उसको एक नीस मिली थी 15 ईयर ओल्ड. उसका नाम है वीरा. सो वीरा, जब काफ़ी टाइम हो गया चुपचाप बैठे बैठे, चुपचाप बातचीत हो रही है, मतलब कुछ बात ही नहीं हो रही है, तब वो पूछती है, डू यू नो मैनी पीपल राउंड हियर? क्या आप काफ़ी लोगों को यहाँ जानते हैं इस प्लेस में, मतलब इन दिस विलेज? हार्डली अ सोल. हार्डली अ सोल मतलब, हार्डली मीन्स ना के बराबर, ना के बराबर. हार्डली अ सोल मतलब कोई भी नहीं, एक को भी मुश्किल से जानता हूँ मैं यहाँ पे. माई सिस्टर वॉज स्टेइंग हियर सम 4 years ago. मेरी बहन यहाँ कुछ 4 साल पहले रहती थी. दिस इज फ्रैम्पटन स्पीकिंग. तो फ्रैम्पटन बता रहे हैं कि मेरी बहन यहाँ 4 साल पहले रहती थी, और some and she gave me letters of introduction to some of the people here. और कुछ लेटर्स उसने मुझे दिए हैं कुछ लोगों के नाम पे, जिनको वो जो उन्हें याद है कि वो अच्छे लोग हुआ करते थे.
He made the last statement in a tone of distinct regret. Distinct का मतलब है clear. Clear regret. Regret मतलब पश्चाताप, या फिर रिग्रेट किसको कहते हैं, पछताना। बहुत क्लियरली लग रहा था कि वो इस बात को कहते हुए पछता रहे हैं कि मेरी बहन ने मुझे कुछ लेटर्स दिए हैं कि वो उन लोगों को जानती है, तो मुझे मिलने आना पड़ा। इससे ये पता चल रहा था कि मिस्टर फ्रैम्पटन वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन विजिटिंग मिसेस सैपल्टन्स हाउस। मिसेस सैपल्टन के घर आने में मिस्टर फ्रैम्पटन को बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। इस स्टेटमेंट से उन्हें पता चलता है। ठीक है, किसको पता चलता है? नीस को पता चलता है कि ये व्यक्ति जो मिस्टर फ्रैम्पटन है वो उनके घर मतलब मिसेस सैपल्टन के घर आने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। जस्ट उसकी बहन ने लेटर्स कुछ लिख दिए थे तो उनको आना पड़ा। वो इससे बेहतर ये समझते थे कि गांव में अकेले रहना ही बेहतर है। देन यू नो प्रैक्टिकली नथिंग अबाउट माई आंट। तब तो आपको मेरी आंट के बारे में प्रैक्टिकली कुछ मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि आप तो पहली बार आए हैं, आप तो उन्हें जानते तक नहीं हैं, तो मेरी आंट के बारे में आपको तो कुछ पता भी नहीं होगा। ऐसा वीरा कहती है। वेरा इज अ हु इज वेरा? वेरा इज द नीस ऑफ मिसेस सैपल्टन। ठीक है। परसूड द सेल्फ पोजेस्ड यंग लेडी। परसूड का मतलब क्या होता है? परसू का मतलब होता है कंटिन्यू करना। परसूड का मतलब होता है टू कंटिन्यू। आप लोग ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो है नोट डाउन करते जाइए अपनी नोटबुक में। इट विल हेल्प यू later on to read the lesson. When you will read it, you will be able to understand it clearly. So, वीरा कंटिन्यू करती है कहते हुए कि आपको मेरी आंट के बारे में इसका मतलब कुछ भी नहीं पता है। और ये लड़की बार बार सेल्फ पोजेस्ड वर्ड यूज़ किया जा रहा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है। ओनली हर नेम एंड एड्रेस एडमिटेड द कॉलर। कॉलर मीन्स ये जो बंदा है मिस्टर फ्रैम्पटन, इसको कॉलर कहा जा रहा है क्योंकि यही आए हैं उनके घर पे। तो उसने एडमिट किया कि सिर्फ मुझे उनका नाम और पता मालूम है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ही वॉज वंडरिंग वेदर मिसेस सैपल्टन वॉज इन द मैरिड और विडोड स्टेट। ही वॉज वंडरिंग। वंडरिंग मीन्स ही वॉज थिंकिंग। मन में सोच रहे थे क्या पता ये लेडी मैरिड है या अनमैरिड है या फिर विडो है। विडो मतलब जिसके हस्बैंड मर जाते हैं उनको विडो कहते हैं। ठीक है, विडोड। और जिसकी वाइफ मर जाती है उसको क्या कहते हैं? विडोवर। उसे विडोवर कहते हैं। पर चूंकि ये लेडी है तो इसलिए इसको विडो कहते हैं। और विडो एक नाउन है, लेकिन जब हम इसमें ईडी लगा रहे हैं तो ये विडोड बन जा रहा है, एक वर्ब बन जा रहा है। तो विडोड कंडीशन में है, ये एक परिस्थिति है। तो वर्ब कोई कार्य को भी कहते हैं, किसी स्थिति को भी कहते हैं। तो क्या वो मैरिड है या विडोड कंडीशन में है, ऐसा वो मन में सोचने लगते हैं मिस्टर फ्रैम्पटन। An undefinable something about the room seemed to suggest masculine habitation. An undefinable something. Undefinable मतलब that which cannot be defined, जिसको हम point out नहीं कर सकते हैं। किसी चीज़ को देखकर हम कुछ कह सकते हैं। सपोज कहीं पे धुआं है तो हम ये कह सकते हैं कि आग लगी होगी थोड़ी देर पहले, या अभी भी लगी है, या फिर बुझने वाली है। तो ये जो धुआं है इससे हम आग का पता लगा सकते हैं। लेकिन इस रूम में कुछ ऐसा था जिससे मैस्कुलिन हैबिटेशन का पता चल रहा है। मैस्कुलिन मतलब मेल, रिलेटेड टू मेल। हैबिटेशन मतलब लिविंग। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई जेंट्स मेल रहता है, लेकिन अनडिफाइनेबल समथिंग। लेकिन जिस चीज़ से ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई मेल रहता है उस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता। सपोज किसी के घर में कोई ट्राउज़र या शर्ट्स या ओवरकोट मेल के कपड़े टंगे हुए हैं तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ मेल रहते हैं कोई। लेकिन इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं था, फिर भी समथिंग था उस रूम में जो सजेस्ट कर रहा था कि इस घर में कोई मर्द रहता है। ठीक है, क्लियर? Now her great tragedy happened just 3 years ago. तो ये said the child that would be since your sister's time. तो एक बच्ची है वहाँ पे, वही बच्ची वीरा, वो बार बार कहती है
कि एक ट्रेजेडी उनके साथ हुई थी 3 साल पहले। किन के साथ? मिसेस सैपल्टन के साथ। क्योंकि सैपल्टन घर पे नहीं है और कौन आया हुआ है घर पे? मिस्टर फ्रैम्पटन घर पे आए हुए हैं। कैसे आए हैं? उसकी बहन ने एक लेटर दिया था, उसके थ्रू आए हैं। घर पे कौन मिलता है? वीरा, एक बच्ची 15 साल की। वो ये बताती है कि उनके साथ 3 साल पहले एक घटना घटी। दैट वुड बी सिंस योर सिस्टर्स टाइम। आपकी बहन जब रहती थी उसके बाद का, उसके तुरंत बाद की बात है शायद, उनके जाने की बात, मतलब आपकी सिस्टर जब यहाँ से चली गई होगी उसके बाद की बात है शायद। हर ट्रेजेडी आस्क्ड फ्रैम्पटन, हर ट्रेजेडी? कौन सी ट्रेजेडी? उनकी ट्रेजेडी के बारे में तुम बात कर रही हो? कौन सी ट्रेजेडी के बारे में बात कर रही हो? मिसेस सैपल्टन की ट्रेजेडी पर कौन सी ट्रेजेडी बताओ? Somehow in this restful country, spot tragedies seemed out of place. Spot tragedies मतलब कोई दुर्घटना यहाँ पे अटपटी लगती है। इतनी रेस्टफुल मतलब पीसफुल, इतनी शांत ये कंट्री है कि यहाँ पे कोई भी ट्रेजेडी का होना बहुत ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस लगता है। आउट ऑफ प्लेस मतलब अनकॉमन। बड़े बड़े शहरों में एक्सीडेंट्स का होना कॉमन लगता है, लेकिन इतनी शांत कंट्री में किसी एक्सीडेंट का होना बहुत आउट ऑफ प्लेस लगता है, अनकॉमन लगता है ना? यू मे वंडर वाई वी कॉल दैट विंडो वाइड ओपन ऑन एन अक्टूबर आफ्टरनून। अक्टूबर में हवा सर्द होने लगती है, ऑटम सीजन शुरू हो जाता है। ऑटम में बहुत तेज़ हवा बहती है और ठंड आने लगती है। तो अक्टूबर में जनरली वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में घर की खिड़कियाँ दरवाजे लोग बंद रखते हैं। तो आप, वो वीरा कहती है, नीस जो कहती है कि आप सोच रहे होंगे कि अक्टूबर आफ्टरनून में हमने इस खिड़की को वाइड मतलब ब्रॉड, पूरे तरह से खोलकर क्यों रखा हुआ है? Said the niece, indicating a large French window that opened onto a lawn. ऐसा कहती है कि बड़ा सा विंडो खुला रखा है अक्टूबर आफ्टरनून में, और कहते कहते एक खिड़की की तरफ पॉइंट आउट करती है। पॉइंट आउट करती है मतलब उंगली दिखाते हुए कहती है, ठीक है, कि आप सोच रहे होंगे कि ये फ्रेंच विंडो हमने क्यों खोल के रखा है अक्टूबर में। ये विंडो कहाँ खुल रहा है? एक ओपन लॉन में खुल रहा है, ठीक है। जब विंडो खुलता है तो बाहर लॉन है। It is quite warm for the time of the year, said Frampton, but has that window got anything to do with the tragedy? हाँ, इस समय के हिसाब से ऑटम में वैसे तो बहुत सर्दी पड़ने लगती है, पर हर बार के हिसाब से इस बार काफ़ी गर्माहट है, शायद इसलिए आपने विंडो खोला हुआ है। बट उस विंडो का खुले रहने से और ट्रेजेडी से क्या कोई लेना देना है? ट्रेजेडी का इस ओपन विंडो से क्या कोई रिलेशन है? इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन द ओपन विंडो एंड द ट्रेजेडी? ऐसा कौन पूछ लेते हैं? सेड मिस्टर फ्रैम्पटन, बट हैज दैट विंडो गॉट एनीथिंग टू डू विद द ट्रेजेडी? तो ये कहती है, आउट थ्रू दैट विंडो 3 years ago to a day, her husband and her 2 young brothers went off for their day's shooting. They never came back. आउट थ्रू दैट विंडो, उसी विंडो के थ्रू आज से 2 साल पहले, आज तक, आज से 3 साल पहले सॉरी, गए थे कौन? उनके 2 छोटे भाई और उनके हस्बैंड कहाँ गए थे? शूटिंग करने के लिए गए थे, और आज तक वो लोग लौटे नहीं। They never came back. In crossing the moor to their favorite shooting ground, they were all 3 engulfed in a treacherous piece of bog. Bog किसे कहते हैं? दलदल। आपने सुना होगा, दलदल जो होती है अगर उसमें पैर फंस जाता है किसी का तो वो आदमी दलदल में घुस जाता है, नीचे वो निकल नहीं पाता है। बॉग दलदली जमीन होती है। वेट मडी ग्राउंड दैट इज टू सॉफ्ट टू सपोर्ट वेट। इसका मीनिंग अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए, वेट गीली, मडी मिट्टी, गीली मिट्टी से भरी हुई जमीन, ग्राउंड, ठीक है, दैट इज टू सॉफ्ट
बहुत ही नर्म मिट्टी होती है उसकी। सॉफ्ट टू सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट। वेट, WEIGHT। कोई भी वजन अगर उस पर पड़ता है तो उसको सह नहीं पाती है, इतनी गीली दलदली मिट्टी होती है। ठीक है, ये आप कॉपी कर लीजिए। ओके चिल्ड्रन, नाउ तो वो लोग ऐसे ट्रेचरस पीस ऑफ बॉग पे फंस गए थे शूटिंग करते करते कि वो लौटे ही नहीं। ट्रेचरस मतलब जो अविश्वसनीय हो। डेंजरस यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है अनफेथफुल। जब हम जमीन पे पैर रखते हैं तो हम एक विश्वास के साथ पैर रखते हैं कि जमीन हमें गिरने नहीं देगी, हम जमीन पे खड़े हो जाएंगे टिक करके, है ना। या अगर अपना शू है, हम ऐसे खड़े होते हैं जब जमीन पे, तो ये मान के खड़े होते हैं कि हम जमीन से गिरेंगे नहीं। लेकिन ये जमीन अविश्वसनीय थी, इस पे विश्वास करने लायक नहीं थी। इट वॉज ट्रेचरस, अनट्रस्टवर्दी, जो विश्वास करने योग्य ना हो। अनट्रस्टवर्दी, जो अनट्रस्टवर्दी होते हैं, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, वो लोग डेंजरस भी तो होते हैं। तो यही बोल रहा है वो कि वो बॉग जो था वो दलदल इतनी डेंजरस थी कि उसमें वो लोग फंस गए और लौटे नहीं। It had been that dreadful wet summer, you know, and the places that were safe in other years gave way suddenly without warning. तो ये क्या कह रही है कि it had been that dreadful wet summer. Wet summer season था। dreadful मतलब terrible, dangerous, okay? terrible summer, बहुत ही खतरनाक समर था वो। ऐसा आप जानते हैं कि जो जगह पहले सेफ हुआ करती थी, इन अदर ईयर्स, बाकी सालों में जो जगह सेफ होती थी, प्लेस, वो भी सडनली मतलब गेव वे। इन अदर ईयर्स गेव वे सडनली। गेव वे सडनली का मतलब होता है, गेव वे का मतलब होता है टू बिकम डेंजरस। गेव वे, तो जो जगह पिछली सालों में सेफ होती थी वो जगह भी खतरनाक साबित हो गई, और पहले से कोई वार्निंग नहीं थी, लोगों को पता था कि ये जगह तो सेफ होती है तो वो लोग वहां जाते थे। लेकिन सडनली किसी साल वो जगह दलदलीय हो गई और वो लोग वहां चले गए हर बार की तरह। लेकिन इस बार वो सेफ समझ के गए थे, पर वो जगह अनसेफ थी तो वो लौटे नहीं। That was the dreadful part of it. यही सबसे खतरनाक बात थी। Here the child's voice lost its self-possessed note and became falteringly human. Falteringly human मतलब, अब यहाँ पे उस बच्ची की आवाज़ थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम कॉन्फिडेंट। सेल्फ पोजेस्ड का मतलब कॉन्फिडेंट, तो यहाँ उसकी आवाज़ थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लूज कर देती है, हेजिटेंट बन जाती है वो। हेजिटेंट मतलब उसको थोड़ा सा संकोच हो रहा है बोलने में, है ना, बोलते बोलते संकोच होने लगता है उसको। और बिकेम फॉल्टरिंग। फॉल्टरिंग का मतलब क्या होता है, फिर हेजिटेंट। फॉल्टरिंग का मतलब हेजिटेंट, वो नर्वस हो जाती है, उसकी बोली शेकी हो जाती है। हॉल्टिंग, रुक रुक के बात करने लगती है। एक बच्ची जो कॉन्फिडेंटली बात कर रही है, अब वो रुक रुक के बोलने लग रही है, मतलब उसकी जीभ लड़खड़ा रही है बोलते हुए, क्योंकि वो जो बोल रही है उसमें उसे शायद बहुत दुख हो रहा है। ठीक है। पुअर आंट ऑलवेज थिंक्स दैट दे विल कम बैक समडे। बेचारी आंट, पुअर मतलब बेचारी, हमेशा सोचती है कि वो लोग किसी दिन वापस आएंगे। एंड they and the little brown spaniel that was lost with them. Spaniel is a breed of dog. Spaniel जो होता है एक डॉग की ब्रीड है ना, मतलब कई तरह के डॉग्स होते हैं, अल्सेशियन होते हैं, पोमेरियन होते हैं, है ना, जर्मन शेपर्ड होते हैं, इसी तरह से स्पैनियल। तो ये स्पैनियल जो ब्राउन कलर का था वो भी खो गया था, वो भी चला गया था उनके साथ। तो वो सोचती है वो लोग वापस आ जाएंगे, उसके दोनों भाई, किसके, मिसेस सैपल्टन के दोनों भाई लौट कर आएंगे, उनको ऐसा लगता है, और हस्बैंड भी लौट आएंगे, साथ में उनका जो छोटा सा स्पैनियल है वो जो चला गया था उनके साथ, वो भी लौट आएगा। एंड वॉक इन एट दैट विंडो जस्ट एज दे यूज्ड टू डू, और वो लोग इसी खिड़की से वापस आएंगे जैसे ये लोग इस खिड़की से निकल के गए थे। इसीलिए उन्होंने इस खिड़की को उनकी आस में, आस मतलब होप,
In the hope that they would return through the same window, this window was kept open by Mrs. Sappleton. That is why the window is kept open every evening till it is quite dusk. तो शाम तक इस विंडो को हम खुला रखते हैं till it is dusk. Dusk मतलब what's the meaning of dusk? Late evening. सांझ ढलने तक. सांझ को dusk कहते हैं, ठीक है? Poor dear aunt, she has often told me how they went out, her husband with his white waterproof coat over his arm and Ronnie, her youngest brother, singing Bertie, why do you bound? As he always did to tease her. Bertie किसको बुलाता था उसका छोटा भाई? मिसेस सैपल्टन का छोटा भाई बर्टी कहता था मिसेस सैपल्टन को और कहता था बर्टी व्हाई डू यू बाउंड, और उसको छेड़ता था. टीज करना मतलब चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना, ठीक है? तो वो सोचती हैं अभी भी पुअर आंट, बेचारी आंट, कि उनके हस्बैंड जो वाइट वाटरप्रूफ कोट में अपने कंधों पर लेकर वाइट वाटरप्रूफ कोट गए थे, उनका छोटा भाई रॉनी जो उनको छेड़ता था बर्टी पुकार करके, वो भाई वापस आएगा. बिकॉज शी सेड इट गॉट ऑन हर नर्व्स, क्योंकि उनका बड़ा भाई उनको इसलिए चिढ़ाता था क्योंकि वो बर्टी नाम सुनते ही चिढ़ जाती थी. गॉट ऑन हर नर्व्स मीन्स बिकम एंग्री, टू बिकम एंग्री. वो गुस्सा हो जाती थी और उसको गुस्सा करने के लिए ही वो उनको इस नाम से बुलाता था. बर्टी व्हाई डू यू बाउंड? Do you know sometimes on the still, quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that window. अब वो बच्ची कहती है क्या आपको पता है sometimes on still, quiet evenings, still मतलब still means peaceful, निस्तब्ध, जब कोई भी आवाज़ नहीं होती, quiet, शांत, peaceful, silent evenings को मुझे कभी कभी ऐसा एहसास होता है कि they would, I get a creepy feeling. Creepy मतलब creepy what is the meaning of creepy? Frightening, रोंगटे खड़े कर देने वाली, है ना? creepy feeling, frightening feeling, ऐसी डरावनी फीलिंग आती है मुझे कभी कभी जब शामें बहुत शांत होती है और कोई भी शोर नहीं होता. उन दिनों मुझे कभी कभी ऐसी फीलिंग आती है कि वो लोग सभी इस विंडो के थ्रू वॉक करते हुए अंदर आ जाएंगे, ठीक है? ऐसा किससे बात हो रही है? ये वाला जो पार्ट 1 है ये दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है. मिस्टर फ्रैम्पटन नटल हैज कम टू द प्लेस ऑफ अ लेडी. द एड्रेस ऑफ दिस लेडी वॉज गिवन टू हिम बाय हिज सिस्टर. ही इज न्यू टू दिस कंट्री साइड and has come to this lady's house, Mrs. Sappleton's house, with a letter of introduction from his sister. When he comes to this house, what happens? He meets Vera, the niece मतलब भांजी या भतीजी, niece of Mrs. Sappleton, and the niece is talking to him about what? About a open window. एक ओपन विंडो की बात कर रही है कि विंडो अक्टूबर के महीने में क्यों खुली हुई है, ठीक है? I hope children you have understood the lesson and I will deal the next part of it in the next class. Thank you.